So integration method. What is integration method? Basically, according to your syllabus, integration method have 4 category. Okay, that is the different method of integrations included have. First one is integrations by substitution, integration by parts in particular function, and integration by partial fraction, right? So integration by substitution, there are two types, two conditions. First condition is we can find the integration by introducing a new integrated variable. When it is difficult to find the integration by integration of a function. अगर तुम्हारे फंक्शन में इंटीग्रेशन में टाइप का फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करके न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर देंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, सेकंड का पार्ट क्या है? बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. एक्चुअली वेरिएबल तो दिया रहेगा x के टर्म में, इंटीग्रेशन उसको हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ t में. चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to t in a given form of integral function, say integration of f(x). We can transform the integral. First one is substituting x equal to gt in the function integrations of f(x) dx. ठीक है, इस इंटीग्रेशन f(x) dx जो है वो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट टाइप ऑफ फंक्शन दिया हुआ, उसको हम इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते. सो वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू gt, दैट विल हैव dx बाय dt. डेरिवेटिव कर दिए तो क्या होगा? g डैश t, मतलब gt का डेरिवेटिव क्या होगा? g डैश t हो गया. तो dx तो क्या होगा? g डैश t इनटू dt. ये dt राइट हैंड साइड में चला गया. तो इंटीग्रेशन i जो दिया हुआ इंटीग्रेशन f(x) dx will be changed. f will have x, that is gt we have, and dx we have g dash t into dt. So this type which can changing the independent variable x to t. ठीक है, क्लियर है? राहुल सिंह, देवो कमल महातो. यस सर. ओके सर, हाँ. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर? स्क्रीनशॉट तो भेज ही रहे हैं तुमको, तो भेज रहे हैं ग्रुप में सर. स्क्रीन शेयर तो ग्रुप में भेज ही देंगे. हाँ, तो सर आपके ग्रुप में लगता हम ऐड नहीं है सर. ऐड नहीं है तो तुम जो तुम्हारा ग्रुप में एडमिन है वही चेंज करेगा, तुमको ज्वाइन करवा देगा. ठीक है, हम ज्वाइन कर नहीं कर सकते हैं. अच्छा, दीपक सर सर को ऐड कैसे नहीं है सर? सब ऐड हो ग्रुप में. कौन सा ग्रुप है भाई? भाई जो ग्रुप सबसे पहले बना इस कॉलेज में, कौन सा ग्रुप है? तुम इसी दुनिया का है ना तुम? कीप साइलेंट एनीवन. लेटर वाला नहीं. सो नेक्स्ट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े हो? हैव यू रीड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? यस सर. पढ़े हो? यस सर. So integration by parts requires a special techniques for integration by of a function where the integrand function is the multiple of two or more function. ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट्स कब यूज कर सकते हैं? जब तुम्हारा इंटीग्रेशन में टू और मोर फंक्शन रहेगा, दैट विल हैव वी अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, लेट अस कंसीडर द इंटीग्रेशन फंक्शन टू बी f(x) and gx. Mathematically, integration of parts can be represented as integrations of f(x) dx equal to f(x) integration of gx minus integrations of derivative of f(x), so f dash x, integration of a second function, that is gx dx and whole dx. Clear? So integration by parts, with the integration of parts. So first we know that the Eilert rule. What is Eilert rule? Eilert rule क्या है? Identify the function that comes first
of the following list of the selected fx. बोलो. Yes sir. Sir, inverse trigonometry function ILAT sir. आइलेट L जो से होता L से है उसमें logarithm, हम लोग A से फंक्शन algebraic, में T से जो फर्स्ट trigonometry. टर्म आता है उसको फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन Yeah करेंगे. sir. So ILAT can stands for I have inverse trigonometrical function. ठीक है. तो trigonometrical function क्या होता है? Trigonometrical function होता है sin x cos x tan x. So inverse trigonometric function क्या होगा? sin inverse x cos inverse x tan inverse x. log L क्या है? L is logarithmic function. एक क्या है? algebraic Algebraic function. A is algebraic function, that is x. अगर वेरिएबल लेंगे हम लोग x, that will have algebraic function x, x square, anyone, है ना. T have trigonometric function such as E से cos x tan x, and E have exponential function. ठीक है. ये सब तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं बोलो. Yeah sir. लेकिन तुम लोग का सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है, इसीलिए तुम लोग को पढ़ा रहे हैं. बेसिकली दिया हुआ कि नहीं सिलेबस में, देखो. Yes sir. So integral of a particular function have, integral is the method to sum of the function on a large scale. ठीक है, लार्ज स्केल में अगर इंटीग्रेशन में तो दूसरे टाइप का फंक्शन रहेगा, वेरी लार्ज है, तो उस टाइप का फंक्शन में हम लोग फॉर्मूला दिया हुआ है. एक्चुअली वी हैव डिस्कस द इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन व्हिच आर यूजुअली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. ठीक है. एक्चुअली इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या है बोलो. एनीवन स्टूडेंट, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल? This integral application of the application of integral function used in real life, such as finding the area between the curve, volume, average value of the function, kinetic energy, central mass, work done, etc. ठीक है, ये सब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना. Here we will discuss the integrations of some of the important function and they are used in the many other standard integral. So some integral we have, that is dx by x square minus a square. Okay, इसका क्या होगा? 1/2a log of x minus a divided by x plus a plus c. ठीक है. सेकंड इंटीग्रल dx by a square minus x square, फॉर्मूला है 1/2a log of a plus x a minus x. इंटीग्रेशन of dx divided by x square plus a square, 1/a tan inverse x by a. इंटीग्रेशन of dx divided square root of x square minus a square log of x plus x square root of x square minus a square plus c. ठीक है. Fifth one is integrations of dx by square root of a square minus x square, that will have integration sin inverse x by a. And similar way, sixth is dx by divided by square root of x plus a square will have log of x plus square root of x plus a square plus c. ठीक है. Solve the problem. Integrations of x sin inverse x square root of 1 minus x square dx. So value put x sin inverse x equal to theta, so that x equal to sin theta. ठीक है. तो ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो वी यूज द सब्स्टिट्यूट मेथड. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा कंसीडर किया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू थीटा. ठीक है. तो देखो साइन इनवर्स एक्स दिया, साइन इनवर्स एक्स we have the theta. ठीक है. we have the theta. values of x we have sin theta. ठीक है.
और क्या है dx by square 1 minus x square. The dx by square root of 1 minus x square we have d theta. So d theta can be written. There are two functions. There are two functions. Anyone student? Theta and tan theta. The first function will first function we have. Anyone student? First function क्या होगा? Anyone student? थीटा होगा सर। थीटा होगा क्यों थीटा इज अलजेब्रिक फंक्शन आफ्टर दैट sin theta so first function is theta integration of a sin second function is sin theta minus derivative of first function and integration of a second function and the theta will have plus c is one constant so minus theta cos theta integration कर दो sin theta का डेरिवेटिव क्या होगा इंटीग्रेशन minus cos theta ठीक है और थीटा का डेरिवेटिव क्या है 1 हो गया sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा d थीटा प्लस c माइनस थीटा cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर cos थीटा d थीटा प्लस c माइनस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस c इक्वल टू क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x प्लस c ठीक है इधर है कि नहीं बोलो एनीवन स्टूडेंट यस सर। सर सर क्लियर है सर। problem is tan inverse square root of 1 minus x plus x 1 plus x dx so here the function tan inverse square root of 1 minus x by 1 plus x so very large function fx is very large so direct integration cannot be solved so here we use the substitute method the substitute method have put x equal to cos theta right put x equal to cos theta so dx equal to minus sin theta d theta here 1 minus x by 1 plus x can be changed that will have tan square theta by 2 right so integrations we have changed integral will be changed the integrand will be changed so tan inverse already have square root already have 1 minus x divided by 1 plus x values of tan square theta by 2 and dx we have how much minus sin theta d theta so minus sin theta d theta we have तो tan इनवर्स तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा tan थीटा बाय 2 sin थीटा d थीटा tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा विल हैव minus 1 by 2 will be common so theta and sin theta that is the by parts theta is our second function minus ठीक है ना तो माइनस थीटा cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन स्वभाव इसको चेंज करो इंटीग्रेशन करने से तुमको ये मिलेगा सॉल्व करोगे तो है ना तो जहां जहां थीटा है वो क्या होगा थीटा के जगह क्या हो जाएगा बोलो तो थीटा विल हैव थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x ठीक है तो cos इनवर्स x लिख दिए थीटा इक्वल टू और cos थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो cos थीटा इक्वल टू x वी हैव तो x कॉन्वर्स x माइनस sin थीटा का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c so that will have the substitute method सर समझ गए। by parts ठीक है by parts we can भी यूज कर सकते हैं समझ रहे हो यस सर। प्रीवियस क्लास में सारा प्रॉब्लम तो बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम समझ आ रहा है ना जी सर ये तो कुछ तो किया हुआ है सर इसलिए। तो क्या हुआ है तो उसके इसी को तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर देते तो हम लोग बोलते समझ नहीं आ रहा है जी सर हाँ इसे आ रहा है सर।
कौन? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एनीवन स्टूडेंट जानते हो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन? हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन, यस सर जानते हैं। we know that the rational number can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0, ठीक है? p q are function, ठीक है? There are two way of partial fraction. First one is proper partial fraction and improper partial fraction, ठीक है? तो proper partial fraction क्या बोल रहा है? When the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. तो p क्या है? What is p? p numerator denominator क्या है आप लोग? What is p? Rational number p. रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर p by q का फॉर्म में होता है, ठीक है? तो p व्हाट इज द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हो? Yes, sir. यस सर, p is numerator, p is numerator, न्यूमरेटर, q is q is denominator. डिनोमिनेटर. सो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है? देन द पार्शियल डेरिवेटिव इज नोन एज अ प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? इसको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे. इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? When the degree of the numerator, ठीक है, is greater than the degree of the denominator, then the partial fraction is known as the improper partial fraction, ठीक है? इधर है? Yes, sir. ओके, इसको सॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में. इंटीग्रेशन से ओवर x माइनस 2 dx डिवाइड बाय x माइनस 1 x प्लस 5, ठीक है? ये जो इंटीग्रेशन है एज ए लीनियर है, लीनियर बट नॉट रिपीट. एक भी फंक्शन को, हाँ क्या बोले? कैसे करेंगे सर इसको? बता रहे हैं तो. ये लीनियर है और रिपीट नहीं कर रहा. फंक्शन है लीनियर बट नॉट रिपीट. एक भी फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा है. x माइनस 2 भी रिपीट नहीं कर रहा है, x माइनस 1 में रिपीट नहीं कर रहा है, और x माइनस 5 भी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है? लीनियर है. सो एज ए लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको ब्रेक कर दिए a बाई एक्स माइनस 1 और b बाई एक्स माइनस 5, ठीक है? इसको हम लोग कंसिडर कर लिए. लेट द फंक्शन a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 5, इसको एलसीएम लो राइट हैंड साइड में. तो x माइनस 5 और x माइनस 5 तो ये कट जाएगा, है ना? ये होल फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो विल हैव x माइनस 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वी हैव, ठीक है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है? हियर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 देखो, here x equal to 1, here x equal to 1 in equation 2 we have, अगर x equal to 1 किया जाए तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा. तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? a मिलेगा क्या? 1/4. ऐसे सिमिलर वे पुट x equal to 5, यहाँ पर x equal to 5 पुट किया जाए इन इक्वेशन 2 में, we have तो क्या होगा? b equal to 3/4, ठीक है? यस सर. a equal to 1/4, b equal to 3/4 वही करेगा. तो सारा वैल्यू a और b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना? इक्वेशन 1 में तो पुट कर दो इक्वेशन 1 में, देखो, ठीक है? और इंटीग्रेशन कर दो. तो इंटीग्रेशन सो इजी. तो 1/4 log of x minus 1 and 3/4 log of x minus 5 plus c will have. इधर है यस सर.
हेलो सर बोलो। आपका सर हेलो बोलो। माइक ऑफ कर दिया सर बोल के। नहीं नहीं, समझ में आया कि नहीं, हम पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ सर पूरा समझ में आएगा सर, पूरा। सर टॉप। So next problem we have, solve the integration 2x plus 1 divided by x plus 2x minus 3 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या है, लीनियर है और रिपीटेड है। देखो x माइनस 3 जो है ये रिपीट कर रहा है, मतलब 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तब ना स्क्वायर हो गया। x minus 3 have the repeated values, they will have 2 times, so स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे a बाई एक्स प्लस 2, b बाई एक्स माइनस 3, c बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ओके, इसको एलसीएम लो तो ये मिलेगा, एलसीएम लेने से ये मिलेगा ना, x प्लस Yes, sir. एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी कैंसल। We have the result 2x plus 1 किसका फोन बज रहा है सर 2x plus 1 और ये बचेगा, है ना। इक्वेशन 2 हैव क्लियर नॉट। फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2 पुट 3 x इक्वल टू 3 पुट किया जाए तो क्या होगा, ये x इक्वल टू 3 पुट किया जाए तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 पुट कर तो b भी 0 हो जाएगा। तो c वी हैव द 5 7/5। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर ओके, क्लियर है। पुट x इक्वल टू -2, अगर x इक्वल टू -2 पुट किया जाए इक्वेशन 2 में, वी हैव x इक्वल टू -2 पुट किया जाए तो क्या होगा, x इक्वल टू -2 पुट करने से b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। तो ओनली फॉर a विल हैव दैट विल हैव -3/25। किधर है, ठीक है। ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम लोग अगेन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली a वैल्यू निकल गया, c भी निकल गया, अब b हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, a निकल गया, c भी निकलेगा, b निकालना पड़ेगा, है ना। तो b निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में आओ। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या होगा, 2x plus 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड a b c। ठीक है, ए बी सी निकल दो। आप यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, सो दैट विल हैव 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में a प्लस b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस b, so that will have b equal to -a will have -3/25, so plus 3/25 will be there। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में आओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आओ इसमें, ठीक है, a c का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर तो ये मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 put the value of a b c and we have the result, and integration of what, over the integration dx, so we get the result। देखो क्लियर है कि नहीं, बोलो एनीवन स्टूडेंट। यस सर। हाँ, हो गया सर हो गया। क्लियर है सर। ठीक है। So next problem we have integration over dx by x cube plus 1। अब ये क्वेश्चन क्या, न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x cube plus 1, दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को कंसीडर किए हम लोग, ब्रेक कर दिए
मिलेगा? यस सर। वो मिलेगा तो हम ये लिख सकते हैं, हाँ? सर बहुत आवाज आ रहा है सर। अब ठीक है, बोलो ये कंसिडर कर सकते हैं। लेट द इक्वेशन 1 by x cube plus 1 have a by x plus 1 और bx plus c divided by x square minus x plus 1। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हाँ, ठीक है। ठीक है। Here LCM, take the LCM, so we have, क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। So equation 2 clear not? Equation 2 clear or not? बोलो। नहीं Yes, समझ sir. आया सर ये वाला। हाँ, यस सर समझ गया। x cube plus 1 x cube plus 1 तो कैंसिल हो समझ गए सर, दोनों तो कट गया। ठीक है। बचा 1 इक्वल टू इतना बचा सर। यस सर ठीक है ना? समझ गया सर। यस सर। ठीक है सर। तो वैल्यू हाँ सर समझ गया सर। इक्वेशन 2 we have x equal to -1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x equal to -1 पुट करो, ठीक है? इक्वेशन 1 में 2 में x equal to -1 में पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 इक्वल टू 1/3। क्लियर नॉट? यस सर क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 2 में आ जाओ। अगेन वी सॉल्व, on left hand side 1 we have, right hand side a into x square minus x plus 1, b is equal to bx square, c equal to क्या? b plus c into x plus c, है ना? अब equating the coefficient of like power of f on both sides, that is coefficient of x square कर लो, coefficient of x square लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर क्या है? a है, a will be there plus b, ठीक है ना? a plus b equal to 0 एंड x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस a, b का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में आ जाओ, ठीक है? तो इक्वल टू माइनस a का वैल्यू तो निकला हुआ है, निकल गया -1/3, और फ्रॉम इक्वेशन 4 से कंसीडर करोगे, इससे कंसीडर करोगे, a निकल चुका है, b भी निकल चुका है, तो c निकल गया 2/3। कितना है कि नहीं? बोलो। एनीवन स्टूडेंट? क्लियर नॉट? Yes, क्लियर sir. क्लियर सर। क्लियर है? तो यस सर। Yes, sir. आ जाओ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है? देखो इक्वेशन 1 विल है यहाँ पर a b c सारा वैल्यू पुट कर देंगे, है ना? पुट कर दिए, a b c की वैल्यू पुट कर दिए। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने से ये मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने से तुमको ये मिलेगा, ठीक है? अब 1 by 1 इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से तुमको पूरा क्लियर मिलेगा। देखो रिजल्ट वी हैव, देखो देख के बताओ किसी को क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ऑल क्लियर सर। हाँ, हेलो। ऑल क्लियर है सर, सब समझ में आ रहा है। ऑल क्लियर है? जी सर। हाँ बोलो। तो क्लियर है मतलब ना?
इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो सब समझ में आएगा? जी सर। हाँ जी सर। आना इसके बाद चाहिए सर समझ में तो। हाँ आए तो हम बताइए खाना बना लिया है लेकिन अब तक खाया नहीं। क्या बोले इतने जो सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिए हैं, न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए हैं। अब क्या पढ़ेगा बोलो? सर खत्म हो गया ना टॉपिक सर? हाँ इतना ही था सर। और है पढ़ाएंगे? जी सर। पानी की थैंक यू सर। थैंक यू बोनस होगा? नहीं सर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखो, चेक इट, सिलेबस देखो, ठीक है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारा पढ़ा दिए। रैशनल नंबर, रेशनल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा दिए, ठीक है? बहुत फास्ट है सर। हाँ आप बोलो क्या पढ़ोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ा दिए हैं, सब तो पढ़ा ही दिया सर, और क्या? इसको पढ़ाए कि नहीं बोलो? पढ़ाया सर। सिलेबस कंप्लीट हो गया सर। सिलेबस कंप्लीट करा दिए सर आप। कंप्लीट नहीं हुआ है, हम पढ़ क्या, हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? ये तुमको पढ़ा दिए हैं, देखो ये पढ़ा सर दिए, नहीं दिख रहा है सर। सिलेबस नहीं दिख है? रहा सर। स्क्रीन शेयर कीजिए वीडियो सर। आप वीडियो ऑफ किए हुए सर। यस आप दिख रहा है सिलेबस दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। आप देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, देखो ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है? यस सर। ये पूरा हो हाँ पूरा ही पढ़ा दिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन सब पढ़ा दिए। तो हाँ सर। हाँ मुझे नहीं चला कि पढ़ा दिए। ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं। पूरा। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिए हैं, सब हो गया सर। हो गया है, ठीक है? उसके बाद तुमको ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए कि नहीं बोलो? हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर एक क्वेश्चन है। बोले हाँ। आप बोल रहे हैं कि इतना पढ़ा दिया लड़का लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो कंफर्म कीजिए। जैसे अभी आप पढ़ाए, जो भी ये हो रहा है वो हो रहा है, 2 मिनट में सर बता दिया आप। लेकिन आप भी जानते हैं सर कि मैथ कोई भी ऐसा चीज है कि बिना प्रैक्टिस का कुछ होगा नहीं। तो आप सर जितना भी पढ़ाए, जितना भी लड़का लोग बोल रहा है कि हो गया सर, बस एक बार हम ये बोलना चाहते हैं कि एक बार टेस्ट लेके देखिए तो कोई कितना जान रहा है क्या नहीं जान रहा। एकदम सर लीजिए हो सर। जाएगा कि आप कितना सिखाए हैं। हाँ देखो, सर टेस्ट लीजिए एकदम तुम सर। लोग सुनो सर कर लीजिए बात सर। को समझो मेरा। तुम लोग को जितना बोलोगे हम उतना पढ़ा देंगे, ठीक है? रिपीट करने नहीं, बोलो, पढ़ाने का repeat बात करा नहीं बोल रहे देंगे। सर। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक ही क्वेश्चन पढ़ाइए, ठीक है? सब लड़का को समझ में आना चाहिए और बनाना आना चाहिए। अगर आप बात को 10 क्वेश्चन समझो, पढ़ाते हैं, सुनो हमको, अगर तुम लोग को पढ़ाने तुम लोग बोलोगे, रिपीट करने बोलोगे, हम रिपीट भी कर देंगे, रिवीजन भी कर देंगे, ठीक है? बहुत कोई होता है क्लास में होता है कि सब हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है सर, समझ में आ रहा है। जितना अभी आप सब पढ़ा रहे हैं ना, एक क्वेश्चन पूछ के देखिए तो